Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you have given your examination at your best and you are expecting a positive result. So, you all know the weightage of instrumentation part in every examination. Like if you are giving CSIR, whether you are giving DBT GRF or ICMR GRF or any other PhD entrance examination, or let's say any recruitment examination. So you know the importance of the instrumentation part, because the recruitment, whenever you are going for a recruitment, the employer will always ask you that what are the skills you have. They will not believe on the theory marks even if it is more than 90 plus, right? Because they want to hire such an employee who is capable of doing all the laboratory skills, like advanced instrumentation must have. I can bet you that even if your theory is only 70 or let's say 75, but your skills are top notch, you will get hired. So, keeping this in mind, I am starting a series where I will be providing you the detailed instrumentation knowledge starting from PCR, which is the most basic one if you are going to work in a laboratory, right? So molecular biology instrument I will target first, then I will go to different instruments which are used in cell biology also and for different purposes like biochemistry instrumentation also. So I will start from PCR, conventional PCR, what is the difference in between the RT-PCR and PCR, and what is qPCR. Now this one is the conventional and this one is the latest one. So we will discuss that how the conventional PCR at that time and now we are having digital PCR. So what is the principle behind each of these instrument and what is the function, right? So without further delay, let's start the video. नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो because you will get premier life science content, and just for addition, do follow me on Instagram because over there I provide different content. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो. अदर देन दैट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So firstly, I will be providing you a comparative difference, you can say a comparison between the conventional one. Okay, this one is the conventional PCR, the RT-PCR, the real-time PCR and the digital PCR, right? So you will be able to know what exactly is the RT-PCR, qPCR and dPCR, and whatever your purpose, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्लाइड यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा पीसीआर आपको लगाना है. ठीक है, सो यू नो दैट पीसीआर का फुल फॉर्म अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट वी हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज यहाँ पे पीसीआर है, यहाँ पे आरटी-पीसीआर है, यहाँ पे क्यू-पीसीआर है, यहाँ पे डी-पीसीआर है. सो पीसीआर इज सिंपली द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटी-पीसीआर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड नॉट रियल टाइम. रियल टाइम इज दिस वन, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, जो हमें रियल टाइम में बताता है कि कितना एम्पलीफिकेशन हुआ है. एंड डी इज फॉर डिजिटल पीसीआर. सिंपल इनफ. नाउ द टेम्पलेट वी रिक्वायर इन पीसीआर इज डीएनए. ठीक है, नाउ वाई द नेम इज आरटी-पीसीआर? बिकॉज फर्स्टली वी नीड आरएनए विच इज कन्वर्टेड इनटू cDNA एंड देन इट इज रन, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो होता है. ठीक है, बट द स्टार्टिंग मटेरियल इज आरएनए एंड नॉट डीएनए. ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर. So you can now compare in between the normal PCR and the RT-PCR, that the only difference is that the starting material is RNA. Firstly, you have to convert it into cDNA and rest of the process will be same. ठीक है, other than that, in qPCR you can take DNA or cDNA. ठीक है, एंड डिजिटल पीसीआर में डीएनए और cDNA. तो डिफरेंस कहाँ पर है? सिर्फ आरटी-पीसीआर में है. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिक्वायर्ड. नाउ वेयर इट विल बी रिक्वायर्ड? वेयर यू आर यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट. ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे ज़रूरत होगी. ठीक है, qPCR में और डिजिटल पीसीआर में कब होगी? व्हेन यू आर टेकिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स सब में ही ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है,
कौन पॉलीमराइज करेगा बिना पॉलीमरेज के? नाउ द मेन पर्पस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट विल बी easier फॉर यू टू recognize. मेन पर्पस ऑफ पीसीआर इज टू एक कॉपी से मल्टीपल कॉपी बनाते जाना है, ठीक है, डीएनए एम्पलीफाई करना है. आरटीपीसीआर का मेन पर्पस क्या है? आरएनए डिटेक्शन, ठीक है. Like so many viruses are having RNA as their genetic material. So for that we cannot use the conventional PCR. We need RT-PCR. Now apart from that, the major role and major application of real-time PCR is that quantification of nucleic acid. You can quantify it on a real time. ठीक है, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आप तुरंत देख सकते हो. You don't need to run a gel or anything like that. ठीक है. Digital PCR will provide you absolute quantification. ठीक है. नाउ आउटपुट, हाउ यू विल सी दी आउटपुट? यू कैन सी दी आउटपुट थ्रू द डीएनए बैंड्स. ठीक है, डीएनए बैंड्स आप देखते हो उसमें, क्योंकि कन्वेंशनल पीसीआर इट इज़ नॉट एट ऑल क्वांटिटेटिव. सो यू हैव टू, आफ्टर एम्प्लीफिकेशन, आफ्टर यू गॉट योर पीसीआर प्रोडक्ट, देन यू एम्प्लीकॉन मिल गया है, देन यू विल रन अ एग्रोज जेल एंड उसमें आप देखोगे कि एम्प्लीफिकेशन हुआ भी है या नहीं हुआ. अगर बैंड्स दिखते हैं तो हुआ है, नहीं हुआ है तो इट माइट बी कि एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ हो. ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इसमें भी डीएनए बैंड्स दिखते हैं, अग्रोज जेल आप कर सकते हो. नाउ इन दिस वन लाइक क्यू पीसीआर यू कैन क्वांटिफाई इट थ्रू दी सीटी वैल्यू. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन कर्व और सीटी वैल्यू देख के आप पता कर सकते हो. आपको इसमें जेल रन करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इट हैज़ पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉपलेट्स डी पीसीआर में, तो वहाँ पे भी आपको जेल रन करने की ज़रूरत नहीं है. डिटेक्शन मेथड अगरोज जेल, ये फ्लोरेसेंस हो गया, ये एंड पॉइंट फ्लोरेसेंस एक दिखता है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉपलेट्स में. क्वांटिफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगरोज जेल में तो आप सिर्फ क्वालिटेटिवली बोल रहे हो कि बैंड दिखा कि नहीं दिखा. आरटीपीसीआर में भी नहीं कर सकते. रिलेटिव और एब्सोल्यूट यू कैन डू थ्रू क्यूपीसीआर एंड एब्सोल्यूट ओनली इन डीपीसीआर. ठीक है, सेंसिटिविटी किसका हाई होगा आप बताओ? सबसे ज़्यादा हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल से, और कन्वेंशनल से हम जाते हैं एडवांस की तरफ. तो एब्सोल्यूट जो बता रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट होगा. ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस है. आप देखो कि एप्लीकेशन और इसका वे ऑफ डूइंग, सो यू विल बी एबल टू नो कि ये कितना ज़्यादा प्रिसाइज है. अब इसका वेरी हाई होगा, इसका हाई होगा, इसका मॉडरेट होगा. ठीक है, नाउ प्रिसीजन यू कैन सी एक्सट्रीमली हाई किसका होगा? ऑफकोर्स डीपीसीआर का होगा. स्टैंडर्ड कर्व नीडेड किसमें? इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो हम अग्रोज जेल कर रहे हैं, इसमें भी ज़रूरत नहीं है. इसमें ज़रूरत पड़ती है और इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ना टाइम के बारे में. ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है? सो द टाइम रिक्वायर्ड इन द कन्वेंशनल पीसीआर इज जनरली 2 to 3 hours, because you will first amplify the whatever template you are having, and after that you have to run an agarose gel, so it will take time. ठीक है, और इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द आरएनए इनटू cDNA एंड देन यू विल रन अ पीसीआर पूरा चलेगा, फिर आपको जेल रन करना होगा, देन इट टेक्स 1 hour more than this one. qPCR is about 1.5 to 2 hours, right? And digital PCR is 3 to 5 hours. So सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है? डिजिटल पीसीआर में लग रहा है. ठीक है, इक्विपमेंट की बात करें तो ये थर्मल साइक्लर, इसमें थर्मल साइक्लर में हो जाता है पीसीआर और आरटीपीसीआर. इन दिस वन qPCR वी नीड रियल टाइम पीसीआर मशीन एंड नॉट दी कन्वेंशनल थर्मल साइक्लर. ठीक है, रियल टाइम मशीन होनी चाहिए. नाउ डिजिटल पीसीआर इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डीपीसीआर. सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है इट इज़ दी qPCR. ठीक है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर यूज़ होता है. कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई जो एडवांस होगा वो कॉस्टली होगा, तो डीपीसीआर सबसे कॉस्टली होगा, उसके बाद दिस वन, एंड बिकॉज इसके रिएजेंट्स कॉस्टली होंगे. और मीडियम आरटीपीसीआर, और लो कौन सा होता है? पीसीआर, क्योंकि उसमें कोई भी आपको डाइज का यूज़ नहीं करना है, सो इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर. ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन. इतने में तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, क्विकली मैं आपको पूरी तरह से बता देना चाहती हूँ इस एक वीडियो में कि क्या होता है पीसीआर, आरटीपीसीआर, qPCR, डिजिटल पीसीआर. सो सी, पीसीआर कैन ओनली एम्पलीफाई दी डीएनए. पीसीआर कैन सिर्फ और सिर्फ वो एम्पलीफाई कर सकता है डीएनए, इट कैन नॉट क्वान्टिफाई. ठीक है, क्वांटिफाई करने का जो
काम है वो किसे दे दिया गया है, qPCR को, इसलिए इसके सामने छोटा सा q लगता है, q फॉर क्वांटिटेटिव। अब वो क्वांटिटेटिव तो है लेकिन रियल टाइम है, जैसे जैसे एम्प्लीफिकेशन होगा यू कैन सी। अब RT-PCR क्या होता है, इट विल मेक फर्स्ट cDNA from RNA and then it will amplify. Digital PCR क्या है, I count individual DNA molecule because you distribute the template in each of the well, you will see in the next slides. ठीक है, तो इतना याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है किसका कौन सा टेम्पलेट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है इस टॉपिक से। नाउ हु विच वन केम फर्स्ट, हु केम फर्स्ट? सबसे पहले जो कन्वेंशनल पीसीआर की बात करें तो सबसे पहले पीसीआर आया होगा। पीसीआर कॉपीज अ स्पेसिफिक डीएनए रीजन मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम यूजिंग रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल। ठीक है, 1 कॉपी ऑफ डीएनए होता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4, 8, 16, 32 मिलियंस। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर द कन्वेंशनल पीसीआर? फर्स्टली यू विल नीड द टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको एम्पलीफाई करना है, सो यू विल बी नीडिंग द प्राइमर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू this region. ठीक है, so forward primer, reverse primer, then after that you will be in a need of the tag polymerase. ठीक है, thermus aquaticus polymerase, because you will be denaturing the template at 94 degrees Celsius. such a high temperature cannot be tolerated by the नॉर्मल पॉलीमरेजेस। ठीक है, यू विल बी नीडिंग DNTPs, तभी तो इलोंगेशन होगा, MgCl2, PCR बफर एंड वाटर। ठीक है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स किसके लिए होते हैं, कन्वेंशनल पीसीआर के लिए। तो सबसे पहले पीसीआर आया, फिर RT-PCR आया, फिर रियल टाइम पीसीआर आया, फिर डिजिटल पीसीआर आया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ क्विकली हम स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्टली व्हाट डू वी डू, फर्स्टली वी डीनेचर दी अपना जो भी टारगेट है उसको डीनेचर करते हैं। ठीक है, डीनेचरेशन हुआ 94 में, यू कैन सी सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा टूट गया। देन आप क्या करोगे, प्राइमर एनिल करोगे, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर एंड एक्सटेंशन होगा 72 पे। ये जो क्लिप आर्ट है वो इजीली आपको समझा रहा है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डीनेचरेशन। इट मीन्स यू हैव टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड सो दैट यू विल अलाउ द प्राइमर्स टू बाउंड टू द टारगेट। ठीक है, एनिलिंग 50 to 65 होता है एंड देन एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारा हो गया। एप्लीकेशन जीन क्लोनिंग में म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंसेज में पेरेंटेज टेस्टिंग में कि कौन किसका पेरेंट है, पैथोजन डिटेक्शन में, जीनोटाइपिंग में ये वाइडली यूज होता है, एंड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज वाइडली यूज्ड। अब इसकी खासियत देखी जाए, प्रोज देखा जाए तो सिंपल है, चीप है, रिलायबल है, स्पेसिफिसिटी भी ठीक ठीक है, इजी टू परफॉर्म है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, क्वांटिफाई नहीं कर सकता। अब ये इतना करने के बाद भी हमें फिर से जेल रन करें, यानी एक पीसीआर हो गया उसके बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, यू नीड टू डू मोर। लेस सेंसिटिव है, एंड पॉइंट एनालिसिस ही होता है, यानी इन बिटवीन आप पता नहीं कर सकते, जब तक आपका जेल रन नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू नो कि एम्पलीफाई हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो ऑन दैट नोट इट हैज मेजर शॉर्टकमिंग्स। नाउ कमिंग टू दी RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं बच्चे कि RT जो है वो रियल टाइम है। RT रियल टाइम नहीं है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रियल टाइम के लिए लगा होता है Q। ठीक है, वाई वॉज RT-PCR developed? PCR can amplify only DNA. As I told, the majority of viruses contain RNA as the genetic material. For example, coronavirus, influenza, dengue, Zika, HCV and HIV. ठीक है, so for that we need to amplify the RNA so that we need to like we can diagnose the disease. So firstly RNA is converted into cDNA and then normal PCR is run. So additional enzyme जो use होते हैं यहाँ पे वो use होता है reverse transcriptase. So this enzyme is responsible for the conversion of RNA into the cDNA. तो ये additional step RT-PCR में जुड़ जाता है। Now स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आप RNA को आइसोलेट करोगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे, cDNA बन गया, PCR करोगे, जेल रन करोगे। तो फर्स्ट जो कन्वेंशनल PCR है और इसमें डिफरेंस समझ आ गया कि इसमें एक एडिशनल एंजाइम का यूज होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, RNA होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, ओलिगोटीटीज होंगे, RNase इनहिबिटर्स होंगे, PCR रिएजेंट होंगे। ठीक है, RNase इनहिबिटर क्यों, क्योंकि RNA को वो डिग्रेड ना कर पाए, और जो नॉर्मल PCR के रिएजेंट्स होते हैं वो इसमें लगेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, मेनली फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द वायरसेस, राइट। सो यू नीड टू नो कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है इसका
एडवांटेज, आरएनए एनालिसिस पॉसिबल है, सेंसिटिव भी है, स्पेसिफिक भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. विदाउट डूइंग आरटीपीसीआर यू कैन नॉट डायग्नोस दीज वायरसेस. ठीक है, आरएनए वायरसेस. लिमिटेशंस क्या है? आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, आरएनए कंटामिनेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है. ठीक है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. सो यू शुड नो द लिमिटेशंस ऑल्सो. एडवांटेजेस तो ठीक है, लेकिन यू शुड ऑल्सो नो द लिमिटेशंस, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, qPCR. So main principle is DNA amplification and fluorescence measurement. Therefore, we can know it in real time. Real time में आप पता कर सकते हो. Unlike conventional PCR, you don't wait until the end. Endpoint analysis किस में होता है? अगरोज में, और ये RT-PCR में. ठीक है, मतलब कन्वेंशनल पीसीआर और आरटी-पीसीआर में. बट इन दी qPCR यू कैन, जैसे जैसे आपको कर्व मिलेगा वैसे वैसे आप पता कर सकते हो. एंड यू डोंट नीड टू वेट कि कंप्लीट हो, हम जेल रन करें. जेल तो रन ही नहीं करना है. सो वाई इट इज कॉल्ड रियल टाइम. ठीक है, क्यों बोला जाता है रियल टाइम? बिकॉज फ्लोरेसेंस इज मेजर्ड आफ्टर एवरी पीसीआर साइकिल. साइकिल 1 के बाद आपको कुछ फ्लोरेसेंस मिलेगा, साइकिल 2 के बाद आपको फ्लोरेसेंस मिलेगा, साइकिल 3 अप टिल जितने भी साइकिल्स, 25 साइकिल, 30 साइकिल, 40 साइकिल, जितने भी साइकिल्स आप रन कर रहे हो उतने में आपको फ्लोरेसेंस मिलेगा. देन यू विल बी गेटिंग अ फाइनल एम्प्लीफिकेशन कर्व. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना क्या आपका हुआ है. सो डिटेक्शन केमिस्ट्रीज जो हैं वो थ्रू डिफरेंट वेज यू कैन डिटेक्ट. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सब कुछ एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू मेक सो मेनी पार्ट्स ऑफ दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, सो ये जो साइबर ग्रीन है, साइबर ग्रीन बाइंड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, फ्लोरेसेंस इंक्रीजेज विथ मोर डीएनए. ठीक, अब जो साइबर ग्रीन एंड टेकमैन प्रोब है, दे आर बेसिकली टू प्राइमरी मेथड यूज टू डिटेक्ट द डीएनए एम्प्लीफिकेशन. ठीक है, अगर हम qPCR कर रहे हैं तो प्राइमरीली ये दो चीज़ें हैं, ये केमिस्ट्रीज आपको समझनी होंगी. कौन सा? साइबर ग्रीन एंड टेकमैन प्रोब. ठीक है, इसी का यूज़ किया जाता है. जैसे साइबर ग्रीन की अगर हम बात करें तो साइबर ग्रीन is basically a fluorescent dye that binds non-specifically to all the double stranded DNA. अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया नॉन स्पेसिफिकली. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि साइबर ग्रीन ज़्यादा अच्छा है कि टेकमैन प्रोब अच्छा है. तो जैसा मैंने बोला कि इट बाइंड्स टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन स्पेसिफिकली. सो यू कैन जस्ट गेस द आंसर कि टेकमैन प्रोब इज मोर एफिशिएंट देन साइबर ग्रीन बिकॉज द बाइंडिंग इज नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, जैसे जैसे एम्प्लीफिकेशन होता है, एज द एम्प्लीफिकेशन अकर, मोर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो फ्लोरेसेंस सिग्नल जो है वो इंक्रीज होता जाता है. यानी जितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता जा रहा है, फ्लोरेसेंस सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना फ्लोरेसेंस मिलेगा. ठीक है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू यूज. बट जो मेजर लिमिटेशन वो है, इट डिटेक्ट नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक प्राइमर डाइमर भी अगर बन रहा है तो वो भी तो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो उसको भी वहाँ पे भी जाके साइबर ग्रीन बाइंड हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखो बाउंड साइबर ग्रीन, ये अनबाउंड साइबर ग्रीन. तो जितना जितना आपका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है उतना सिग्नल आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना फ्लोरेसेंस आपको ज़्यादा मिलेगा. तो ये हुआ. इसके अलावा जो टेकमैन प्रोब है, इट इज़ अ सीक्वेंस स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट प्रोब. ठीक है, सीक्वेंस स्पेसिफिक है. They only emit a fluorescence signal when they hybridize specifically to your target sequence and are cleaved by the Taq polymerase. अब देखो इसका मेन जो फंक्शन है वो क्यों हम बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सीक्वेंस स्पेसिफिक है. यानी कि ये तभी फ्लोरेसेंस ये एमिट करेगा, यानी तभी फ्लोरेसेंस देगा जब ये हमारे टारगेट सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज होगा. तो यानी ये जो नॉन स्पेसिफिक जैसे प्राइमर डाइमर ये वाली चीज़ पे नहीं जाके बाइंड करेगा, जाके सीधा टारगेट सीक्वेंस पे बाइंड होगा एंड तभी हमें फ्लोरेसेंस एमिट करेगा. अब ये कॉस्टली होगा क्योंकि जो जितना बेटर परफॉर्म करे वो उतना कॉस्टली होगा. सो वाइल मोर एक्सपेंसिव दे ऑफर हायर स्पेसिफिसिटी एंड अलाउ फॉर मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर में ये यूज होता है. यानी कि इट डिटेक्ट्स मल्टीपल टारगेट इन अ सिंगल रिएक्शन. ठीक है,
सो इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये दो केमिस्ट्री समझना इसलिए भी ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे क्वांटिफाई करता है? इट प्रोवाइड द CT वैल्यू दैट स्टैंड्स फॉर साइकिल थ्रेशोल्ड, द साइकिल एट विच फ्लोरेसेंस क्रॉसेस अ डिफाइंड थ्रेशोल्ड, ठीक है। किस साइकिल पे सबसे ज्यादा फ्लोरेसेंस दिखा? अब देखो, लो CT इज इक्वल्स टू मोर स्टार्टिंग टेम्पलेट, हाई CT लेस स्टार्टिंग टेम्पलेट। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, 3 पेशेंट का आपने क्वालिटी रियल टाइम PCR किया, ठीक है। अब पेशेंट A का CT वैल्यू आया 16, पेशेंट B का आया 24, पेशेंट C का आया 35। अब कौन से पेशेंट में हाईएस्ट स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ टारगेट न्यूक्लिक एसिड दिखा? ठीक है, कौन सा पेशेंट ज्यादा बीमार कहलाएगा? तो पेशेंट A कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कम ही CT वैल्यू में ज्यादा टेम्पलेट देखने को मिल गया, ठीक है। तो पेशेंट A हैड द हाईएस्ट स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ टारगेट न्यूक्लिक एसिड। तो थ्रू CT वैल्यू यू कैन क्वांटिफाई। नाउ क्वांटिफिकेशन टाइप्स भी, रिलेटिव क्वांटिफिकेशन यू कैन डू, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज से कंपेयर करके। सो कंपेयर्स एक्सप्रेशन, जैसे आप जीन एक्सप्रेशन देख रहे हो, सो हाउसकीपिंग जीन और जो भी आपका जीन है टारगेट जीन, उसके बीच में आप देखते हो। तो कॉमन एनालिसिस क्या होता है? डेल CT, डेल CT, देन ये आप रिलेटिव क्वांटिफाई कर सकते हो। इन जीन एक्सप्रेशन वी यूज दिस, ठीक है। हाउसकीपिंग से हम देखते हैं कि जो दूसरा जीन है वो कितना एक्सप्रेस हुआ है। Other than that, you can do absolute quantification. Uses a standard curve generated from known concentration, reports exact copy number और concentration. Applications you can see सबसे ज़्यादा यूज होता है हॉस्पिटल्स में फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक। मल्टीप्लेक्स होता है मल्टीपल बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब मल्टीपल पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लिमिटेशन यही है कि बहुत कॉस्ट है, कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, फ्लोरेसेंस की वजह से कई बारी जो एक्यूरेसी है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। Now dPCR. So dPCR is the advanced, ठीक है। Instead of amplifying everything in one tube, the sample is divided into thousands to millions of tiny partition, droplet, wells, chamber. मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। Here you can see, आप जैसे PCR सब कुछ एक PCR ट्यूब में लगाते हो, ठीक है, यहाँ आपने लगाया, बट ये चीज़ हम क्या करते हैं, सब कुछ को मिक्स करके, यानी ये हो गया आपका डिजिटल ड्रॉपलेट PCR मिक्स, ठीक है। डिजिटल ड्रॉपलेट PCR आपने मिक्स किया एक ट्यूब में, रिएक्शन मिक्सचर सब कुछ डाल दिया जो आप डालते हो। उसके बाद ड्रॉपलेट जनरेशन में आप रखोगे इसको, वो टाइनी मल्टीपल इसमें वो करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर PCR होगा, देन ड्रॉपलेट रीडर उसको रीड करके रिजल्ट देगा, ठीक है। हियर यू कैन सी सैंपल, फिर उसका पार्टीशन इनटू 1000 ऑफ ड्रॉपलेट, PCR एम्पलीफिकेशन होगा, एंड पॉइंट फ्लोरेसेंस रीडिंग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव काउंट होगा, एब्सोल्यूट कॉपी नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखो ये आपने ट्यूब में बनाया, फिर उसको दे दिया ड्रॉपलेट जनरेटर को, ऐसे ऐसे, ताकि क्या हो, कहीं पे भी कुछ मिस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि इसमें इस वेल में अगर आपका DNA है, तो इसमें अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वहाँ पे बाइंड होके आपको सिग्नल दिखेगा ही दिखेगा। तो इससे क्या होता है, ईच ड्रॉपलेट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंट PCR। तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन हुआ ना। जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट वो हम कंपेयर करके बोलते हैं, लेकिन ड्रॉपलेट PCR में क्या होता है कि हर एक इंडिपेंडेंट ये ड्रॉपलेट में अपना PCR चल रहा है, ठीक है, एम्पलीफिकेशन चल रहा है। तो सब अगर एम्पलीफिकेशन हुआ है तो ये सिग्नल देगा पॉजिटिव, नहीं हुआ है तो नेगेटिव देगा। तो आप एब्सोल्युटली बोल सकते हो कि हाँ वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है। सो इट डिटेक्ट्स ड्रॉपलेट फ्लोरेसेंस सिग्नल, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव ड्रॉपलेट एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट सीक्वेंस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिखा है जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया। पॉजिटिव पार्टीशन टारगेट प्रेजेंट होगा, नेगेटिव पार्टीशन टारगेट एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो वो टारगेट है, तभी तो पॉजिटिव हम कह रहे हैं। तो इस तरह से वो कैलकुलेट करता है। नाउ व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट? Conventional PCR measures total product. qPCR estimates starting quantity from fluorescence kinetics. Digital PCR count individual amplification event, making it highly precise for low abundance. जिसमें जैसे मान लो लो abundance टारगेट है तो इंडिविजुअली आप बांट दोगे तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन आप बता सकते हो। एप्लीकेशन क्या है? रेयर म्यूटेशन डिटेक्शन में, मिनिमल रेसिडुअल डिजीज में, और कॉपी नंबर वेरिएशन वाली चीज़ जहाँ पे आपको पता है कि एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन देना है, वहाँ पे आप dPCR यूज़ करोगे। लिमिटेशन क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, हायर रिएजेंट कॉस्ट हो जाएगा,
और जो इसमें मैन पावर लगेगा वो भी ट्रेंड होना चाहिए। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस है। अब एक क्विक हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम अब सेशन को एंड करें। पीसीआर क्या करता है? प्रोड्यूस डीएनए कॉपीज। आरटीपीसीआर क्या करता है? आरएनए टू सी डीएनए फर्स्ट। क्यूपीसीआर क्या करता है? क्वांटिफाइज डीएनए इन रियल टाइम। डिजिटल पीसीआर क्या करता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड देन एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन करता है। सो पीसीआर डिटेक्ट करेगा डीएनए, बिल्कुल करेगा। आरटीपीसीआर करेगा जब आरएनए को हम सीडीएनए कन्वर्ट कर देंगे तब करेगा। क्यूपीसीआर डिजिटल पीसीआर करेंगे ही करेंगे। आरएनए कौन नहीं कर सकता है? नॉर्मल पीसीआर नहीं कर सकता, आरटीपीसीआर करेगा। क्यूपीसीआर भी करेगा, डिजिटल पीसीआर भी करेगा। ठीक है, क्वांटिफिकेशन क्या होगा इसमें? पीसीआर ये। तो देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इतने इजी वे पे मैंने बनाया। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।